कहता हूँ कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। यहाँ चंद मिनटों में जिंदगियां गुजर जाती हैं, पता नहीं चलता, तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। A very enriching, enlightening. Me, it has touched my soul. Himanshu has come a long way, and he can be a good icon for the youth. He is so with innovative ideas and full of positivity. शायद बातों बातों में कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपके जहन को टच कर जाए, जो आपको जिंदगी के एक कदम करीब ले जाए, जो आपको अपने अंदर ले जाए. So this is what the Share and Grow is all about. The best thing is, and the simplest way is, you come, you share your experiences, and in turn obviously expect others as well कि अगर वो आएं, क्योंकि सिंपल सी बात है, कुछ मैं आपसे कहूँगा, कुछ आप मुझसे कहेंगे. Share and Grow initiative is a great idea. जब इंसान बिल्कुल डाउन एंड आउट होता है ना लाइफ के अंदर, जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट चीजें खराब होती हैं, तब वो लीप ऑफ फेथ लेता है. 10,000 times hard work and zero confidence will not get you anywhere. हाँ, but 10,000 times self confidence and zero hard work will also not get you anywhere. Your level of success will never exceed your level of personal development. बचपन में जाके झांक के देखना कि अपनी जिंदगी का एक पर्पस क्या है. ये शब्द हैं, या तो ये निकलने चाहिए किसी को एम्पावर, अपलिफ्ट और एनकरेज करने के लिए, नहीं तो बंद रहना चाहिए. हम माफ इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि माफ करने का एक इंग्रेडिएंट होता है, हमारे अंदर वो इंग्रेडिएंट नहीं है माफ करने का. I mean, this line of yours was very catching कि भगवान बनने की जरूरत नहीं है, भगवान है अपना काम करने. It touched my soul, it touched my heart, it touched my life. I learned so much. There were sessions for the brain, there were sessions for the heart, but I think your session was for the soul. I think I always feel forgiveness is never for anyone else. Forgiveness is always for you. मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप सही पटरी पर नहीं हो जिंदगी की, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, सब बेकार है. कम से कम जिंदगी पटरी तो सही हो ना. आप ट्रैक है, ये काम कर रहे हो, यहाँ पर पहुंचना है, वहां पर, तो जितनी मर्जी मेहनत कर लो सुबह से लेकर रात तक, आप पहुंच नहीं पाओगे. 15-15 साल के रिश्ते 5 मिनट में सुलझ जाते हैं अगर आप बैठ के बात करें. तो अक्सर ना ईगो में रह के हम बात नहीं करना चाहते. हर कोई सिर्फ फिजिकल हेल्दी के बारे में करता है, फिजिकल फिट रहने की बात करता है, कोई भी इमोशनली फिट रहने की बात ही नहीं करता. मेरे लिए ये सेशन कितना इम्पोर्टेंट है मुझे पता चला है सर. थैंक यू. Share and Grow. Share and Grow. Share and Grow initiative. The more we share, The more we grow. And because the more we share, the more we grow. The more we share, The more we grow. Thank you, Bhavesh. A beautiful initiative and a great video. If you are a Fauji, then you live by chance, love by choice, and fight by profession. Audience, you wanna guess this dialogue is from which movie? Shersha. A big yes. We have among us Shersha, the cast member of the blockbuster movie Shersha, Mr. Himanshu Malhotra. A very good afternoon to our guest, Mr. Himanshu Malhotra, and Mr. Rishi Raj Singh, Regional Director, IIBM, of the faculty members and students present here. I, Ayushi Dwivedi, host for today's session, welcome you all to this session of the induction program for batch 2022-24. Sir, may I have your permission to proceed? Thank you, sir. It gives me immense pleasure to introduce you to our guest for today's session, Mr. Himanshu Malhotra, founder of Share and Grow initiative. As an artist by profession since last 17 years, with numerous TV shows and film to his credit, carrying vast experience of life, sharing knowledge and wisdom through experiences and anecdotes of his life in order to make it fruitful and enriching for others. Sir has been the winner of Nach Baliye Season 7 and has been also the participant in Khatron Ke Khiladi Season 7.
At present, he is grateful for the appreciation he has been receiving as Major Rajiv Kapoor in his last released film with Dharma Productions titled Shersha with Siddharth Malhotra and Kiara Advani. With a strong body of work and his extensive experiences with individuals in TV, films and reality shows, he has gained deep insights about human behavior and patterns. Through Share and Grow initiative, he shares his well-rounded life experiences with individuals, help them find their unique potential and learn them to highest achievements in their life. Now I would like to request sir to take this session further and enlighten the students. Please sir. Hi everyone. Thank you. That's very kind of Dr. Jay, first of all. Thank you for inviting me. It's always a pleasure to come here, to meet you, to talk to you, to understand about life. And of course, aapke father. He is not here at the moment, but thank you so much for inviting me back again. Thank you, Rishi. And बहुत पुरानी दोस्ती है. जब मैं कुछ 21 साल का था, तब जी सिने स्टार्स की खोज करके आप लोग तब पैदा हुए थे? कुछ लोग हो गए होंगे, I'm sure. So when I was 21, I'm 40 at the moment, so I'm talking about 19 years before. So you can calculate now. Okay? So जी सिने स्टार्स की खोज एक टैलेंट हंट था और जहां से शुरुआत हुई थी. कुछ करना था जीवन के अंदर, कुछ बनना था, कुछ सोचा था, कुछ करते हैं जीवन में. डैड का बड़ा अच्छा बिजनेस था, पैसे वैसे थे, लग्जरीज थी, कंफर्ट्स था, सब था. बस कुछ नहीं था तो शायद अपना अस्तित्व नहीं था कि खुद क्या करना है जीवन के अंदर, क्योंकि वो बड़ा आसान काम था. तो मैंने सोचा कुछ करते हैं. पहले क्रिकेटर बनने की कोशिश की, कई साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेला, 10-12 साल. आज बहुत सारे दोस्त हैं जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं. शिखर धवन इज प्लेइंग फॉर द कंट्री, आकाश चोपड़ा प्लेड फॉर द कंट्री, आशीष नेहरा प्लेड फॉर द कंट्री. और खैर वो नहीं हो पाया, उसका भी एक रीज़न था, मैं बताता हूँ क्यों. फिर उसके बाद सोचा अब क्या करें, कुछ तो करना है जीवन के अंदर, कुछ तो अपना नाम होना चाहिए, कुछ तो ऐसी पहचान होनी चाहिए. लेकिन उस पहचान को बनाने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं और बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है. मुझे लगता है ये त्याग और तपस्या नहीं कर पाते हम. घर छोड़ना पड़ा सबसे पहले तो. दिल्ली में रहता था, काफ़ी ऐशो आराम थे वहाँ पर, सब चीज़ें थी, गाड़ी थी, घर था, ड्राइवर था, हर चीज़ हाथ में मिलती थी. लेकिन जब बॉम्बे आए तो फिर रेंटेड अपार्टमेंट में 4 लोगों के साथ रहना पड़ा. वहाँ पे उनके साथ समय बिताना पड़ा. ये भी नहीं पता था कि बर्तन कहाँ से खरीदने होते हैं, घर चलेगा कैसे, रहते कैसे, कुछ भी नहीं पता था. बट ये तय कर लिया था कि कुछ करना है. और फिर वहीं से त्याग शुरू हुआ, फिर वहीं से तपस्या शुरू हुई. 2004 से लेकर आज 2022 हो गया है. करते 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 18 साल हो गए और उसके अंदर बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ किए, तकरीबन 17-18 टेलीविज़न शोज़, 4-5 फिल्में जो अभी जिसमें से लेटेस्ट शेरशाह थी, और कुछ रियलिटी शोज़ बीच में. किस्मत अच्छी थी, ईश्वर का हाथ, जीत भी गए. वाइफ भी बड़ी अच्छी डांसर है, तो शायद सब चीज़ों का तारमदार साथ में हो गया. बट इतने सालों में बस ये समझ में आया कि अगर अपनी पहचान बनानी है, अपने जीवन में अपने लिए कुछ करना है, तो मैं डॉक्टर जय को भी ये कह रहा था, मैंने कहा खुद को झोंकना पड़ता है, बिना उसके होगा नहीं जीवन में. अगर किसी को लगता है कि आसानी से सब चीज़ें मिल जाएंगी तो शायद गलतफहमी है. मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से बता सकता हूँ, क्योंकि जितना जीवन देखा है, जितना समझा है, जितने लोगों से बात की है, फ्रॉम द लेजेंडरी आदित्य चोपड़ा जी टू ऋतिक रोशन टू जॉन इब्राहिम, जिन जिन लोगों से बातें कर चुका हूँ, जिन जिन के साथ बैठ चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ, समझ चुका हूँ जीवन को, सबके अपनी अपनी बहुत सारी तपस्याएं, बहुत सारे त्याग हैं. तो अगर आप अपनी कुछ पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ अपना अस्तित्व को बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो जीवन में शायद मैं कहता हूँ कि जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, कोई ऐसी चीज होती है हर इंसान के अंदर जिसके लिए उसका जन्म हुआ होता है, लेकिन हम शायद समझ नहीं पाते वो जन्म किस लिए हुआ है. हम भटकते रहते हैं, मुझे लगता है हर जगह. भटकते कैसे हैं? हम इनको देखते हैं,
उनको देखते हैं, उनको देखते हैं, उनको देखते हैं, बस देखते हैं लोगों को, और फिर जैसा वो कर रहे हैं हम वही करने की कोशिश करते हैं। हम समझ नहीं पाते हमें एक्चुअली क्या चाहिए। कुछ तो होगा आपके अंदर, कुछ तो ईश्वर ने दिया होगा। आपको पता है हमारे अंदर हमारी सोल का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट जब बच्चा पैदा होता है ना, द ब्लूप्रिंट इज इनसाइड दैट सोल। वो ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है कि कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हम इधर उधर देखते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो ब्लूप्रिंट अपना रास्ता भूल जाता है। तो जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कुछ है मेरे अंदर, क्या है, क्या खास बात है, उस खास बात को पहचानना जरूरी होता है। और फिर पहचानने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने पहचान लिया और उसके बाद सब चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद फिर तपस्या शुरू होती है, उसके बाद त्याग शुरू होता है कि क्या क्या कर सकते हैं। बिकॉज ईश्वर भी उसी को देता है जो कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं जीवन में। परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी जीवन में, बिना उसके होगा नहीं, राइट? अगर इतनी आसानी से सबको मिलता तो फिर हर कोई आज के डेट में सुपरस्टार होता, हर कोई अपने अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुका होता। लेकिन होता क्या, बहुत कम लोग हैं, मुझे लगता है 5 से 10% लोग ही हैं जो शायद अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। बाकी सब तो मुझे लगता है आते हैं और चले जाते हैं। लाइफ का साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को ग्रो और एक्सपांड करने के लिए खुद को झांकना पड़ता है, खुद को खोजना पड़ता है। फिर वहां से कुछ निकलता है, फिर उसकी तपस्या चलती है कॉन्स्टेंटली, एवरी डे। और इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं होता, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरी तपस्या वो मेरी है, जो मुझे करना है वो मुझे करना है, क्योंकि वो मेरे जीवन का रास्ता तय करेगी। हम कर नहीं पाते, क्यों? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि शायद हम बनना तो बहुत चाहते हैं, सोच भी शायद बहुत बड़ी होगी, लेकिन एक्शंस में बड़े इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जरा सा कोई तकलीफ, जरा सी परेशानी, जरा सी पेन, जरा सी सफरिंग आती है, हम भटक जाते हैं और भाग जाते हैं वहां से, है कि नहीं? एस्केपिज्म जिसे कहते हैं। 4 दिन जिम जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ यहां पर होती है, 2 छुट्टियां आ जाती हैं, उसके बाद जिम की मेंबरशिप वहीं की वहीं रह जाती है, और हम ना एक्सरसाइज करते हैं, ना उठते हैं, ना जाते हैं। हमें लगता है छोड़ दो। क्यों? सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, थॉट अच्छा था, लेकिन एक्शन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जो फीलिंग है ना उसमें गड़बड़ है। वो फीलिंग का सही होना जरूरी है, इन द सेंस जिस काम को करने के बाद आपको अच्छी फीलिंग होती है तो आप उस काम को दोहराते हो या नहीं दोहराते हो? दोहराते हो ना। लेकिन जिस काम को करने के बाद अच्छी फीलिंग नहीं होती तो उसको छोड़ देते हो। अभी फीलिंग किसकी है? फीलिंग आपकी है, पड़ोसियों की है, किसी और की है? कौन डिसाइड करेगा इसके बारे में कि अच्छी फीलिंग होनी चाहिए या बुरी फीलिंग होनी चाहिए? सिंपल सी बात है ना। अगर जिम जाते हो और 4 दिन ट्रेनिंग करते हो और उसके बाद खुद को थोड़ा सा अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है, या फिर आपके भाई बहन, बंधु, बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी आके कहता है वाह यू लुकिंग रियली नाइस, तो आपको लगता है वाह अब तो जिम जाना चाहिए मुझे। तो फीलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है। तो जो थॉट और एक्शन के बीच की जो फीलिंग है ना, अगर आपने इस फीलिंग को सही कर लिया किसी काम को करते समय, मतलब हाइपोथेटिकली किताबें पढ़ना किसी को पसंद है यहाँ पर? ऐसे ऐसे मत को, सच बोलो अपने आप से भी, मुझसे भी। मैं सिर्फ सच ही बोलता हूं, इधर उधर की बातें नहीं करता। किस किस को किताबें पढ़ना पसंद है? तो कुछ लोगों को किताबें पढ़ना पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता। बहुत सारे लोगों को शायद नींद आ जाती होगी, पढ़ने के बाद 2 पेज पढ़ते हैं और सो जाते हैं, नींद आ रही है बहुत ज्यादा, ऐसा होता है। तो जिनको किताबें पढ़ना पसंद है, उनको क्यों पसंद है? क्योंकि उनको किताब पढ़ के क्या आती है?
अच्छी फीलिंग आती है। एब्सोल्युटली राइट। किताब पढ़ के अच्छी फीलिंग आती है। जब किताब पढ़ के अच्छी फीलिंग आती है तो उसको दोहराते हैं। तो आपको भी जीवन में यही करना है कि जिस काम को करने के बाद या किसी काम को शुरुआत करनी है, किसी काम को आगे लेके जाना है, उसके अंदर फीलिंग अच्छी डालें। सुबह उठते हैं, कितने बजे उठते हैं? 6 o'clock तो बहुत लेट है। 6 o'clock तो बहुत लेट है। 5 AM ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा कोर्स चलता है जिसमें लोग 4:30 बजे उठते हैं, लोग 5 बजे उठते हैं रोज। और वो लोग जो काम भी करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं। मैं खुद 4:30 बजे उठता हूं, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। इंस्टाग्राम पे जाइए, आज स्टोरी चेक कीजिए, 358th डे चल रहा है। टाइमिंग इज 4:44 AM इन द मॉर्निंग। 1-2 दिन से कुछ नहीं होता जीवन में। 1-2 दिन से कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप कैसे हो जाता है? क्योंकि सुबह उठ के मुझे बड़ा खूबसूरत महसूस होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं अपने साथ हूं। कुछ सोचता हूं, कुछ लिखता हूं, कुछ पढ़ता हूं, गार्डन में चला जाता हूं, वॉक करता हूं, ट्रेनिंग कर लेता हूं, कुछ भी। वो समय जो हमेशा दूसरों के चक्रव्यूह में रह के बाहर भटकता चला जाता है, वो सुबह का समय अपने लिए होता है। इट्स मी टाइम वेयर आई अंडरस्टैंड व्हाट डू आई एक्चुअली वांट फ्रॉम माय लाइफ। अदरवाइज हम क्या करते हैं? मुझे लगता है बस चलते चले जाते हैं। जहां भीड़ चल रही है हम वहीं चल रहे हैं, जहां सब जा रहे हैं हम वहीं जा रहे हैं। भीड़ की एक खास बात होती है। भीड़ की खास बात यह है कि भीड़ जो है आपको झूठा साहस देती है। आपको झूठा साहस देती है भीड़, और उसी के अंदर ना आपकी पहचान छीन लेती है। सिंपल है ना? भीड़ के अंदर सिर्फ साहस है, झूठा वो भी, क्योंकि 100 लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन पहचान क्या है अपनी? हाउ कैन यू स्टैंड आउट? हाउ कैन यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ? इंपॉर्टेंट है। अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उठ पाएंगे सुबह सुबह? 6 बजे तो सभी उठ रहे हैं, उसमें क्या फायदा? बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दैट इज 3:30 AM to 4:30 AM। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साल उनके जीवन के वेस्ट भी हो गए। उन्होंने समझ में आ गया कि हमने बस इधर उधर देखा देखी, बहुत सारा अपना समय व्यर्थ कर दिया। अब समय आ गया, अगर अब नहीं डिसीजन लिया जीवन के अंदर तो कब लेंगे? अब अगर तपस्या नहीं की, अब अगर डिसिप्लिन नहीं रहा जीवन के अंदर, अगर अब अपने जीवन को एक सही दिशा नहीं दी, तो बिखरना बड़ा आसान है। पता क्या होता है, जिंदगी में ना परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतें आती ही रहेंगी। फैसला हमारे ऊपर होता है कि हम उन परेशानियों से बिखरना चाहते हैं या निखरना चाहते हैं। बिखरना बड़ा आसान होता है, निखरना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर निखर गए तो फिर जीवन आपका है। वो आगे इतने सारे आपको फल देता है, आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं। वंस यू, थोड़ी बड़ी बात है बट कह देता हूं, वंस यू सिंक्रोनाइज विद दिस यूनिवर्स, वंस यू आर सिंक with the fundamental principles of this universe, everything is going to fall for you. Everything is going to be in favor of you, but you have to synchronize with this universe. And in order to synchronize with this universe, you have to dedicate yourself to your karma. जो आपको करना है, कर्म धर्म कुछ भी कीजिए, जो भी आपका पर्पस है, find that purpose. कुछ तो है जो बाहर निकलना चाहता है, कुछ तो है जो क्रिएट होना चाहता है, कुछ तो है जो रास्ता बनाना चाहता है। लेकिन शायद डर बहुत सारे हैं अंदर, है कि नहीं? मेरे अंदर भी थे। बात छोड़ गई थी बीच में, उसको कंप्लीट कर देता हूं। मैं क्रिकेटर क्यों नहीं बन पाया? वो इसी वजह से नहीं बन पाया क्योंकि
फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा था, डर बहुत लगते थे। ऐसा लगता था कि नेट्स में, प्रैक्टिस मैचेस में तो बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता था, लेकिन जब असली का मैच आता था तो डर जाता था, घबरा जाता था। ऐसा लगता था होगा ही नहीं, और 0 पे आउट होता तो बाहर आ जाता था। तो बेचारे घर वाले भी थक गए आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने कहा ठीक है यार, अब इतना समय दे दिया है, कर तो कुछ पा नहीं रहे तो छोड़ दो। फिर छूट गया। तो कमाल की बात है ना, मैं हमेशा चाहता था कि वो ना छूटे और वो छूट ही गया। क्यों? क्योंकि अपनी खामियों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से, अपने डर की वजह से। तो डर आपको अंदर अंदर खोखला कर देगा जीवन में, और ये डर ना हर चीज में हावी हो जाता है। फिर हमारा करियर हो, हमारी लाइफ हो, हमारे रिलेशनशिप्स हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, डर हर प्रकार का कैप्चर कर लेता है। रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा होता है डर कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, उसके बिना क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सच तो ये है, मेरे पापा की मृत्यु हुई थी 2 अप्रैल 2013 ऑन माई बर्थडे। मैं यहां पर खड़ा हूं, जिंदा हूं, जीवित हूं, खुश भी हूं। मैं तो मृत्यु की बात कर रहा हूं, हम तो सेपरेशन की बात करते हैं सिर्फ रिलेशनशिप्स में। कुछ नहीं होता, बस ऐसा लगता है, और हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, एंड देन वी गेट स्टक। क्यों? क्योंकि वहां पर डर इतने सारे हैं। डर जहां पर है वहां पर प्रेम नहीं हो सकता। लव एंड फियर आर ऑपोजिट पोल्स। ईदर यू कैन लव समथिंग और यू कैन बी फियरफुल ऑफ दैट। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑपरेट ऑन फियर। ये मैंने अपने जीवन से सीखा। जब क्रिकेट छूटा तो मुझे लगा यार मैंने एंजॉय नहीं किया गेम को इतने साल। मेरे को बस ये था, एक फतूर सा था, एक डर सा था, इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, बस एक रट लगा रखे, लेकिन होता कुछ है नहीं उससे, क्योंकि आपने उस लम्हे में एंजॉय नहीं किया गेम को। यू नेवर लव्ड द गेम, यू वर ऑलवेज फियरफुल कि कहीं छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, और छूट ही गया। When you love something, then कहते हैं ना, वो शाहरुख खान साहब कहते हैं कि everything conspires in this universe to give it to you, but you have to love it, love it, love it. बट प्रेम, जो हम प्यार की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, उसमें सच्चाई होनी बड़ी जरूरी है। उसमें सच्चाई का होना जरूरी है, उसमें निष्काम कर्म का होना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में एक टर्म है जिसे कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब होता है बिना किसी कामना, बिना किसी तमन्ना, बिना किसी ख्वाहिश, बिना किसी डिजायर के कर्म करना। कि मतलब अगर क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने से प्यार है, फिर आप इंडिया के लिए खेल पाओ ना खेल पाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको बैडमिंटन खेलना है, बैडमिंटन से प्यार है तो आपको बैडमिंटन से प्यार है, फिर आप इंडिया के लिए खेलो नहीं खेलो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी कमाल की आयरनी होती है, जब आप इस तरह से जीवन में उतरते हैं और इस तरह से चीजें करते हैं तो सब चीजें आपके पास खुद सामने आ जाती हैं। दे विल कम टू यू। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ी सी परसिस्टेंस चाहिए होती है, थोड़ी सी तपस्या, थोड़ा सा त्याग, आएगा सब, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। पूरा ब्रह्मांड सिर्फ नियत पे चलता है। कर्म का मतलब ही नियत होता है। पूरी श्रीमद् भागवत गीता में सिर्फ कर्म की बात की गई है। कर्म का मतलब ही नियत है। आपकी नियत कितनी साफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बोलते तो हैं साफ है लेकिन अंदर से करप्ट है। Your intent in this universe has to be right and pure. The moment that intent is pure, you will find everything synchronizing for you. सब चीजें सामने आके खड़ी हो जाएंगी। लोग सामने आके आपको आगे धक्का मार के चले जाएंगे जीवन में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। People will come, they will help you, they will push you. आगे बढ़ो, because this is your purpose. The universe will conspire for you. The intent has to be right. अब उस इंटेंट में बात आती है कि अब नियत साफ तो सभी कहते हैं, जैसे सब कहता है आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड वुमन। कोई अपने आप को खराब थोड़ा ना कहता है।
तो क्या मतलब होगा नीयत साफ होने का? कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट इंटेंट? सोचो। अगर हम कहते हैं कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी बताइए। यू हैव अ माइक? कैन यू टेक वन माइक? गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज आयुषी द्विवेदी. फॉर मी इट इज, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक फ्रॉम दोज पीपल. उसका मत बिकॉज इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन एंड आई डोंट एक्सपेक्ट समथिंग इन बैक कि वो भी मेरे लिए कुछ करेगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, उसी को मेरे लिए साफ नियत कहते हैं. कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं और उसके पीछे हमारा एक मोटिव छुपा होता है कि वो भी हमारे लिए करे, तो फिर तो नियत में साफ तो कहीं से रह नहीं जाएगी. फिर वो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन हो जाता है कि मैं तेरे लिए लेकर आऊंगा तो कम से कम ओप्पो और वीवो तो ला के दे दे मुझे. मैंने बर्थडे पे ये गिफ्ट किया, तूने मेरे को कुछ भी नहीं दिया. तो यहाँ पे तो नियत साफ हो नहीं सकती. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर, थैंक यू. एनीवन एल्स? और नियत साफ होने का मतलब क्या होता है बताओ? सोचो, बताइए बताइए. गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज भावेश. सर मेरे लिए नियत साफ होने का मतलब भले मैं किसी के लिए अगर अच्छा नहीं कर पाऊँ तो किसी के लिए बुरा भी नहीं करूँ. बड़ी खूबसूरत बात है, प्लीज क्लैप फॉर हिम. दैट इज आल्सो वंडरफुल कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा ना कर पाऊँ तो कम से कम जाने अनजाने में भी कोशिश ये हो कि हम किसी के लिए बुरा ना करें. ओके, दैट्स वेरी नाइस. वांट टू से एनीथिंग एल्स? कुछ और भी कहना? ओके, वंडरफुल. और नियत साफ होने का मतलब क्या है बताओ? प्लीज अब इनको माइक दे दीजिए. सर हमारी सोच मतलब समझाइए. मतलब सर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमें करना चाहिए. हम तो अच्छा वही सोच करते हैं. सर, अच्छा सोच और बुरा सोच. अच्छी सोच और बुरी सोच. यस सर. अभी बड़ा वाइड सी बात है. हम अच्छी सोच के बारे में क्या कहेंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज अच्छी सोच एंड व्हाट एग्जैक्टली इज बुरी सोच? अगर मैं समझूं आपसे तो बताइए. सर अच्छी सोच मतलब वो मतलब कितना अच्छा है, मतलब कोई नहीं. आई अंडरस्टैंड. ये थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, हम सुन तो लेते हैं लेकिन शायद इसकी डेप्थ में जाता नहीं. अच्छी सोच और बुरी सोच, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी बात ना हो जाए जिससे किसी का बुरा हो या किसी का कोई नुकसान पहुंचे किसी प्रकार का, तो शायद वो गलत इंटेंट हो सकती है, गलत सोच हो सकती है. या जो उन्होंने कहा अपेक्षाओं के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में, कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हम कर्म करें, किसी के लिए कुछ करें, उससे किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन और अपेक्षा ना रखें. कोई नहीं, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में. व्हाट इज अच्छी सोच एंड व्हाट इज बुरी सोच? जरूरी है जीवन में. थैंक यू. एक और बड़ी कमाल की चीज होती है इंटेंट के अंदर, राइट इंटेंट में. हर इंसान को जीवन में अपने लिए सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर जब हर अपने लिए चाहिए, सॉरी जब हर किसी को अपने लिए चाहिए, तो क्या फिर ईश्वर देता रहेगा हर किसी को जो मांगता है? नहीं देता ना. क्यों नहीं देता? सोचा है कभी? You have to earn it. नहीं, सोचो. सॉरी, लैक ऑफ एफर्ट्स नहीं. सोचो, ध्यान से सुनो. हर इंसान को अपने लिए सब चीजें चाहिए. गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, जो भी चाहिए, XY चीज चाहिए. तो फिर ईश्वर देता क्यों नहीं है? क्यों? एक एक करके. हाँ, हाथ खड़ा किया उन्होंने. बट बिना ऐसा माइक दे दीजिए उनको. जरूरी नहीं है जो अपन को चाहिए वो अपने लिए सही है. सॉरी, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है. प्लीज क्लैप फॉर हर. कभी हम जाने में ऐसी गलत चीजें मांग लेते हैं दूसरों को देखते हुए. जब हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि हम तो ले लेते हैं, सामने वाले को मिल रहा है, लेकिन शायद इन द लॉन्ग टर्म इट्स नॉट राइट फॉर अस. तो भगवान को पहले पता होता है कि किसके लिए क्या सही है, इसलिए वो उस अकॉर्डिंग देते हैं. क्लैप फॉर हर. बड़ी अच्छी बात है कि ईश्वर को पता होता है कि तेरे लिए क्या सही है, तो वो तय करता है
लेकिन हम लगे रहते हैं सारा दिन, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और पता लगता है बहुत बार ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं जब भी ईश्वर से मांगो तो सोच समझ के मांगो, कहीं ऐसा ना हो जो मांग लो यस कहीं ऐसा ना हो वो मिल जाए और पता लगे आपके लिए अच्छा नहीं है वो, तो फंस जाओगे। फिर ईश्वर कहेगा मैंने तो तुमने मांगा मैंने दे दिया, तथास्तु कर दिया, पछताओ। और क्या है राइट इंटेंट के अंदर, बताइए प्लीज गिव द माइक। चल रहा है डोंट वरी। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज संस्कृति। सर कभी कभी कर्म के कारण भी नहीं मिलता है, क्योंकि कोई जो अपन को जो चाहिए होता है, कभी कभी अपन कुछ पाने के लिए गलत काम करके भी उसको पा लेते हैं। तो अगर भगवान को नहीं देना होगा तो वो बुरे कर्मों के साथ तो नहीं दे। तो बेसिकली बात आप इंटेंट की कर रही हैं कि अगर इंटेंट सही नहीं है, हाँ। अगर गलत कर्म तो वही होगा ना बेसिकली। हाँ। कर्म की जब हम बात करते हैं हमें लगता है हम एक्शन की बात करें, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में कर्म का मतलब ही इंटेंट से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, करेक्ट, और एक मरीज है, मरीज टेबल पे है, लेटे हुए हैं और तबीयत काफी खराब है। जाने अनजाने में उसको ठीक करते समय उस मरीज की मृत्यु हो जाती है डॉक्टर से, करेक्ट। वो ट्रीट कर रहे हैं लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी की, लेकिन मरीज की मौत हो गई। तो क्या है ये, उनका अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? अच्छा कर्म क्यों है? क्यों? बिकॉज नो नॉट बिकॉज इट ट्राइड हिज बेस्ट, बिकॉज उनकी इंटेंट थी, नियत सही थी उस मरीज को बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाया ड्यू टू XYZ रीजंस। तो जब इंटेंट सही होती है तो आपका कर्म जो एक्शन दिखता है अगर वो गलत भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इंटेंट सही है डॉक्टर की बचाने की। वो जानबूझ के नहीं मारना चाहते थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से, उनकी नीयत साफ थी कि मैं इसको बचाऊंगा, लेकिन टेबल पे वो नहीं बच पाया ओइंग टू XYZ रीजंस। इंटेंट जो आपने कहा। कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, ईश्वर सबको देता क्यों नहीं है? सोचो, बताइए। हेलो सर, माय नेम इज़ प्रगति। सर हमें सब कुछ मिलता है तो हम वैल्यू नहीं करते हैं किसी चीज़ की भी। वो तो हम वैसे भी नहीं करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हमें कुछ मिल जाता है तो हम वैल्यू नहीं करते हैं, तो वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ का देके फ़ायदा क्या है भगवान का? एक मिनट रुको, जरूरत से ज्यादा वो छोड़ दो, मैं कह रहा हूं हम किसी भी चीज की वैल्यू नहीं करते, हम अपनी सांसों की वैल्यू नहीं करते। ब्रीथ। How many people here in this room are sitting today have thanked early in the morning once they're awake, thank you God for giving me one more day in my life? कितने लोगों ने सुबह थैंक यू कहा है? ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, इनको जीवन से प्यार है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? आपको पता है every day approximately 1 million people they die in sleep around the whole globe. आप जिंदा हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। Have you thanked yourself, universe, God, divinity, power कि सांसें चल रही हैं? करते हैं थैंक यू? कभी नहीं ना, कभी कभी करते हैं। तो सांसें भी कभी कभी लेनी चाहिए फिर। सांसें तो रोज रोज ले रहे हो। हाँ? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसका मतलब क्या है, हम थैंकफुल होते ही नहीं। हमारा दिमाग, हमारा माइंड सिर्फ लैक में जाता है, क्या नहीं है मेरे पास, जो मेरे पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो इंसान मेरे करीब है उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो इंसान दूर से दिख रहा है बड़ा फैसिनेटिंग, उसकी वैल्यू दिखती है बस। जो आपके करीब है, जो शायद आपसे मोहब्बत करता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपका जीवन मार्गदर्शन करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसकी है जो दूर से कहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, कहाँ फंसवाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं, बट वैल्यू उसकी लग रही है क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हो। बिकॉज द माइंड ओनली फोकसेस ऑन द लैक। हैव यू ट्रेन्ड योर माइंड टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव? जिसे हम ग्रेटफुलनेस कहते हैं जीवन में। क्योंकि अगर दिमाग सिर्फ इसी चीज पे भटकता रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या महसूस करोगे पूरे दिन में? खुशी महसूस करोगे या एंग्शियसनेस महसूस करोगे? तो क्या जीवन एंग्शियसनेस में बीतना चाहिए या खुशी में बीतना चाहिए? सिंपल। A lot of students today, a lot of people, students के बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ constantly, they keep complaining about
वी आर स्ट्रेस्ड, वी आर एंग्शियस, वी आर स्ट्रेस्ड, वी आर एंग्शियस। क्यों? क्योंकि जो आपके पास है आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं आपके पास क्या है। जो है वो भी बेशकीमती है। जीवन इसमें नहीं होता कि जो नहीं है उसके पीछे भागना, जीवन इसमें होता है कि जो आपको मिल रहा है उसको बेहतरीन कैसे बनाना है। दिस इज लाइफ। हर बारी सारी फिल्में धर्मा और यशराज की नहीं आती हमारे पास, लेकिन जो आती है उसको खूबसूरत और बेहतरीन कैसे बनाना है। ताश खेलिए किसी ने कभी? कार्ड्स। तो अगर आप और मैं खेल रहे हैं, यहां से कोई भी इंसान खेल रहा है, तो कौन सा ऐसा इंसान होगा जो हर बार जीतेगा? वो जिसके पास बार बार 3 इक्के आते हैं, या वो जिसके पास कोई भी कैसा भी पत्ता आए लेकिन उसको खेलना बड़े अच्छे से आता है, वो अच्छा खिलाड़ी है उस ताश का, उस गेम का, और वो जीत सकता है। That's how life is. Life will keep throwing balls every time. Are you seeking them as opportunities or are you seeing them as ये तो मुझे चाहिए नहीं था, ये क्यों आ गया, मुझे तो ये चाहिए। तो जो आ रहा है, जो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कद्र नहीं है। हम बार बार बस भाग रहे हैं कहीं पर, और भाग भी कहाँ रहे हैं? दूसरों की देखा देखी। Gratitude becomes a very imperative part of life. जिस दिन आपने ग्रैटिट्यूड रख लिया जीवन के अंदर, उस दिन पहला कदम होगा जीवन परिवर्तित करने के लिए। क्योंकि सांसें चली जाएंगी तो फिर सब चला जाएगा, फिर ये ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। सिंपल सी बात है ना। इट्स ओनली थ्रू योर ब्रीथ। इफ द ब्रीदिंग स्टॉप्स, will you be able to see the universe? Will you be able to feel the universe? Will you be able to listen to anyone? No. What is the most primary important thing? Your breathe. Value it, cherish it, treasure it. Treasure what God has given you every moment. And keep working towards whatever you want. But जो है, उसकी कीमत भी तो है। Coming back to the same question. कहाँ पे थे हम? हाँ बताइए, ईश्वर सबको क्यों नहीं देता? हाँ सॉरी, माइक दे दीजिए, आप ये ले लीजिए। So because of selfishness there is I. अरे वाह। Please clap for her. This is a beautiful answer. Selfishness. I, me, myself. मुझे दे दो। Actually पता क्या होता है इस यूनिवर्स में, अगर समझ में आए, ईश्वर ना आपको नहीं देता। ईश्वर जिसको छप्पड़ फाड़ के, पता जिसको भी छप्पड़ फाड़ के देता ना, वो इसलिए देता है क्योंकि उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को देना होता है। ही इज जस्ट द मीडियम। थोड़ी गहरी बात अगर समझ में आए तो, जिसको दे रहा होता ना उसे अपने लिए नहीं चाहिए होता, उसके थ्रू बहुत सारी चीजें होनी होती हैं। रजनीकांत जी का नाम सुना है? बहुत बड़े मेगा स्टार, सुपरस्टार। उनका लास्ट स्टेटमेंट किसी को पता है क्या है? लास्ट स्टेटमेंट इन द प्रेस। हाँ आओ इधर आओ, बड़ी खूबसूरत बात है, बता रहे हो तो फिर अच्छे से बताओ ताकि सब तक ये बात पहुंचे और शायद लोग सुने। Good afternoon, sir. My name is Bhanupratap Singh. So the last statement he released in the press was that I will donate all my earnings to a charitable trust. थोड़ी सी मैं डिटेल में बता देता हूँ। उन्होंने कहा है 1 रुपया छोड़कर जो भी मैंने आज तक कमाया है वो सारा का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को जाएगा, जहां से लोगों की मदद होगी, उन लोगों की जिन्होंने पैसे खर्चे हैं इतने सालों तक उनकी फिल्में देखने के लिए। नॉट इवन एक्सेप्ट दैट 1 रुपी, बाकी सारा पैसे में से कुछ भी उनकी फैमिली के लिए नहीं जाएगा, किसी के लिए नहीं जाएगा। इट विल गो बैक टू द पीपल फ्रॉम वेयर ही हैज अर्न्ड दैट मनी। तो फिर ईश्वर को कोई दिक्कत होगी उन्हें देने में? दिस इज हाउ इट इज, सिंपल। क्योंकि अगर आपको आपके लिए चाहिए तो हर किसी को अपने लिए चाहिए ना, लेकिन जिसको अपने लिए नहीं चाहिए, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों का उद्धार होना है या बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी है चीज, तो उसको देने में क्या तकलीफ है? दैट पर्सन बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स ग्रेस। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड्स ग्रेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड्स ग्रेस? हाँ बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड्स ग्रेस व्हेन आई से दिस टर्म? कौन कुछ कह रहा था? हाँ जी बताइए।
माय नेम इज़ कशिश और बाय गॉड ग्रेस मीन्स भगवान की दया से। थैंक यू फॉर द लिटरल मीनिंग। बात सही है, भगवान की दया से। गॉड्स ग्रेस का मतलब होता है कि ऐसे ना ईश्वर हाथ रख देता है, राइट? और फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सब चीजें आपके साथ होती हैं, आपके लिए होती हैं, आपके फेवर में होती हैं, जिसे हम किस्मत भी कहते हैं, राइट? ये तब होता है जब नीयत साफ हो, तपस्या हो कर्म के अंदर, और जीवन में त्याग हो। वरना क्या होता है? लालच। मिल रहा है तो ले लो, और फिर फंस जाते हैं, क्योंकि फिर इंटेंट करप्ट हो गई। क्या करप्ट करता हमारे इंटेंट को? सिर्फ लालच। जैसे ही लालच आया, इंटेंट करप्ट हुई। वैसे ही जो ऐसे ईश्वर हाथ रख देता ना, फिर ऐसे हाथ ले भी लेता वापस, और फिर ले लेगा तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सो इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं। क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ के डिनोमिनेटर सही नहीं है, उन्हें सही करना जरूरी है। डिनोमिनेटर समझते हो? फाउंडेशन कह लो, नींव कह लो, कुछ भी कह लो, यस, वो सही होना बड़ा जरूरी है। वो अगर सही हो जाती है तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलता है। Get it right. पता भी नहीं चलेगा लाइफ कब हाथ से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब एक दिन दूसरे दिन से एक हफ्ता से अगला साल बीतता चला जाएगा, और पता लगेगा आएगा कुछ नहीं हाथ के अंदर। सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। कोई है यहाँ पर जो चाहता है कि ख्वाब अधूरे रह जाए? तो अगर ख्वाब पूरे करने हैं तो डिनोमिनेटर सही होने चाहिए, तभी तो आगे तक पहुंच पाओगे। लेकिन आजकल मुझे लगता है हम थोड़ा सा ना भटक गए हैं। हमें सब चीजें बहुत जल्दबाजी में चाहिए, बहुत चीजें। हम किसी चीज के लिए ना त्याग करना चाहते हैं, ना तपस्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बस ऐसे हो जाए, कल साथ में कुछ पहुंच जाए, आगे से सब चीजें बढ़ती चली जाएं। बट ऐसा होता नहीं है, असलियत जीवन में तो नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी के 19 साल के तजुर्बे से तो कह सकता हूं, जब से मैं काम कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे हर किसी को देखा, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, टेलीविजन, फिल्में, रियलिटी शो, सब की चीज बिना तपस्या के नहीं होगा, बिना त्याग के नहीं होगा, बिना राइट इंटेंट के नहीं होगा, बिना गॉड्स ग्रेस के नहीं होगा। हाँ, छोटा मोटा कुछ पाना है तो ठीक है, टेम्परेरीली कुछ चीजें मिल भी जाएंगी, बहुत छिन भी जाएंगी, बट आप डिसाइड करोगे कि जीवन आगे के 30 साल का देखते हो या जीवन आगे के 2 साल का देखते हो। When you see life on a holistic point of view, you want everything. करना है, क्या करोगे लेकिन इसके लिए? क्या त्याग करोगे बताओ? सबसे पहला त्याग होता है नींद का त्याग। कर पाओगे? सबसे पहला त्याग और सबसे कठिन त्याग होता है नींद का, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफर्ट वहीं पर ही है। सबसे पहला त्याग ही अगर कर, जिस दिन जीवन में अपना एक उसूल बना लिया या अपने लिए सोच लिया कि जीवन में कुछ करना है, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं। यू बिकम अनस्टॉपेबल, बिकॉज फिर आप किसी अलग ही फितूर और किसी अलग ही जुनून में होते हैं जहां तक लोग मुकाबला ही नहीं कर पाते। आज भी अक्षय कुमार जी, अगर आपने किसी ने इंटरव्यू सुना होगा, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब वो सूर्योदय से पहले ना उठे हो, मतलब बिफोर सनराइज, राइट? और इस बात को हो गए 25-26 साल या ज्यादा ही। फिर इतनी तपस्या के बाद, इतने त्याग के बाद ईश्वर कुछ देना चाह रहा है तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? विराट कोहली का नाम सुना? आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि रणजी ट्रॉफी का मैच खेलते समय, जिस मैच में वो खेल रहा था 55 नॉट आउट पे, उस दिन खबर आई थी कि हिज फादर पास्ट अवे, राइट? अब चॉइस थी क्या किया जाए कि फादर हैज पास्ट अवे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप घर जाइए, आप 2-3 दिन 4 दिन अपने बिताइए,
खत्म हो जाती है बात, उसके बाद वापस आ जाइएगा। ही कॉल्ड हिज कोच कि सर मैं क्या करूं। क्या कहा उनके कोच ने? उन्होंने कहा कि जो होना था वो हो गया है। जिस मैच में खेल रहे हो 55 नॉट आउट पर, उस मैच को खत्म करो, टीम को जिताओ और आगे बढ़ो। तो अपने पिताजी का दाह संस्कार करने के बाद वो सुबह सुबह 9 बजे ग्राउंड पे था एंड ही स्कोर्ड 95 इन दैट मैच। उसके बाद अगर ईश्वर उनको देता है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी बड़ी परीक्षा दे पाओगे? सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, बहुत बड़ी बात की है मैंने। इतनी बड़ी परीक्षा दे पाओगे? क्योंकि ईश्वर बिना परीक्षा लिए कुछ देगा नहीं। पहले कहेगा कि बेटा मांग तो बहुत कुछ रहा है, क्या उसके लिए परीक्षा, त्याग, तपस्या करना भी चाहता है? सिर्फ बातें ही हैं सिर्फ, क्योंकि बातों से जीवन में कुछ नहीं होता। बातें तो जितनी मर्जी हो जाएंगी। बातों से अगर जीवन परिवर्तित होता तो बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो चुका होता। बातों से कुछ नहीं होता। जब जीवन सामने खड़ा होगा तब वो परीक्षा मांगेगा। कैन यू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? आर यू रेडी फॉर द जंप और नॉट? आर यू रेडी टू सरेंडर? समर्पण के लिए तैयार हो? समर्पण करना पड़ता कि जो आएगा जीवन में, जैसा भी आएगा, आई विल डू इट। तब जाके कहीं ना कहीं रास्ते खुलने शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ दिख नहीं रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहां पे अटके पड़े हैं हम। वी आर स्टक हियर। इसको खोलना पड़ता है। यू हैव टू बिकम ओपन टुवर्ड्स लाइफ। You have to embrace life. You have to become more accepting. You have to say yes to life. You have to say yes to new experiences. नए experiences. जीवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ तजुर्बों का खेल है, बस that's it. Are you doing something किसी चीज को हासिल करने के लिए, या are you doing it so that let me learn something from this? Let me experience life through this. Learnings, learnings, learnings. जीवन सिर्फ लर्निंग है। अगर कुछ करना है किसी को जीवन में, सिंपलेस्ट लाइन गांठ बांध लो, लिख लो, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा लो, पोस्टर्स लगा लो, बिकम द स्टूडेंट ऑफ लाइफ। लाइफ इज गोइंग टू टीच यू एवरी मोमेंट इन सम फॉर्म और द अदर। दिस यूनिवर्स विल गिव यू साइंस लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। सुनो, देखो, पढ़ो। कोई आएगा कुछ बोल के चला जाएगा। कोई गाना चल रहा होगा, वहां गाना आपको कुछ कह देगा। कहीं पे कुछ कोट लिखा होगा, क्या आप उसको ध्यान से देख रहे हो? क्या उसका कुछ इंपैक्ट आत्मा पे पड़ रहा है? क्या वहां से कुछ जागृत हो रहा है? मैंने 10th स्टैंडर्ड में कोट पढ़ा था मेरे मैथमेटिक्स के ट्यूशन में। योर मेरिट्स आर नॉट जज्ड बाय द एफर्ट्स यू पुट बट बाय द रिजल्ट्स यू प्रोड्यूस। सही है ना? कोई भी नहीं देखता एफर्ट्स कितने, रिजल्ट्स देखते हैं। तो ये बात ज़हन में छप गई थी कि मेहनत करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, और आ ही जाता है। थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। बहुत बारी जीवन में आज सारे रास्ते नहीं खुल जाएंगे, कल भी नहीं खुलेंगे, परसों भी नहीं खुलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जस्ट बी एट इट। जो आ रहा है उसे ग्रहण करना भी सीखो, उसे अच्छा बनाना भी सीखो। सिर्फ अपनी जिद में नहीं कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए और यही चाहिए। बहुत बारी वो जिद होती है, और जिद मतलब आपने क्या बोला था? सेल्फ सेंटर्डनेस, दैट इज आई मी माई सेल्फ, ईगोसेंट्रिक। वहां फंस जाते हैं हम लोग। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं, कर सकते हैं तो कीजिए। बाकी तो बातें तो बहुत सारी हैं। प्रवचन देने का शौक है नहीं, सिर्फ यह है कि जो अपनी जिंदगी से सीखा है शायद उससे किसी की कुछ हेल्प हो जाए। उठ जाएंगे सुबह सुबह? अच्छा, कह तो रहे हैं बहुत सारे लोग, वैसे भी आधी अधूरी सी हाँ निकल रही है अभी तो। 2 दिन उठेंगे, तीसरे दिन कहेंगे छोड़ यार, वापस वही जीवन सही है। बस यहीं पे फर्क आ जाएगा। बस वो जो 95% लोग और 5% लोगों में यही फर्क होता है। बस वो जो 2 दिन और तीसरा दिन, कि जो आपने सोच लिया, जो आपने ठान लिया,
जिसकी कमिटमेंट खुद को दे दी, क्या आप उसे पूर्ण कर पा रहे हो या नहीं? कमाल की बात है ना, हम रिलेशनशिप में दूसरे से कमिटमेंट मांगते हैं, लेकिन हमारी अपनी कमिटमेंट अपने लिए नहीं है कुछ भी. The moment you become committed to yourself, every commitment in your life will become clean. मांगते नहीं कि दूसरों से मांगते हैं ना कमिटमेंट. खुद से कमिटेड हो, खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने डायरेक्शंस के लिए, अपने पर्पस के लिए. Your commitment towards yourself will decide everything in life. The truth that is inside you will also decide your life. सच, कितने लोग हैं जो सच बोलते हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हाथ खड़ा करने की जरूरत है. ये तो आपका अपनी आत्मा के लिए धर्मदार है, सिंपल. अक्सर क्या, मैं तो खैर बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बातें करता हूं. अक्सर जीवन झूठ पे टिका होता है, कहानियों पे टिका होता है, एक्सक्यूजेस पे टिका होता है. सच जिस दिन जीवन का हिस्सा बन जाएगा, उस दिन कुछ अलग होगा जीवन के अंदर. द ट्रूथ. सच को सुनना भी बड़ा मुश्किल है और सच बोलना भी बड़ा मुश्किल है. तो अगर जीवन में ज्यादा कुछ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, सच को जीवन का हिस्सा बना लो. क्योंकि सच में ना, द ट्रूथ, सच में करेज होता है. और 95% लोग करेजियस नहीं है, फियर्स है ना. झूठ क्या है? और कुछ नहीं. जिस दिन सच जीवन का हिस्सा बन जाएगा, उस दिन यहां पे करेज आ जाएगा. जिस दिन साहस आ जाएगा, उस दिन तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको. चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे खुद के साथ हो. स्पीक द ट्रूथ, लिसन टू द ट्रूथ. जिस दिन सच जीवन का हिस्सा बन जाता ना, आत्मा का हिस्सा बन जाता, उस दिन कुछ अलग हो जाएगा. लाइफ बेटर हो जाएगी, रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगे, करियर बेटर हो जाएगा. बिकॉज नाउ यू आर मोर करेजियस देन एनीबडी एल्स. मेक इट अ पार्ट ऑफ योर बीइंग. सुनना भी जरूरी है. अक्सर लोग सच सुन नहीं पाते हैं, डर लगता है. राइट, दैट्स ओके. सुनो, expand this heart chakra. Let it go through some pain, let it go through some suffering. It's okay. बिना पेन सफरिंग की ग्रोथ नहीं होती जीवन में. अगर किसी को लगता है कि बिना पेन सफरिंग की ग्रोथ हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी, एवोल्यूशन हो जाएगा, तो शायद बहुत बड़ी गलत फहमी है. जिम में भी जाके जब तक बॉडी पेन नहीं करती, सब जगह से सोर नहीं हो जाती, तब तक बॉडी ग्रो नहीं करती ना. रोज 1 किलो का डंबल उठाते ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो क्या बॉडी बन जाएगी? या आज 1 किलो है, कल 2 किलो, फिर 5 किलो, फिर 10, फिर 50, तब जाके बॉडी बनती है ना. सिंपलेस्ट. पेन से मत भागना जीवन में. पेन जीवन का हिस्सा रहेगा. पेन और सफरिंग जीवन का हिस्सा रहेगा. अगर कोई कहता है कि जिंदगी बड़ी आसान दे होगी, तो नहीं, झूठ है. यहां पे ब्लिस भी है, यहां पे पेन भी है. यू हैव टू एम्ब्रेस बोथ. प्रॉब्लम क्या है? पेन से डर के भाग जाते हैं. बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अभी इंजेक्शन लगा नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन दिखाया जा रहा है और आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं. मतलब क्या हुआ? सोचो जरा ध्यान से. मतलब यह है कि इंजेक्शन अभी लगा नहीं है, बॉडी ने कोई पेन महसूस नहीं किया, लेकिन उसके डर से ही आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं. मतलब डर कितना गहरा है कि पेन नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की. लेकिन बिना पेन के ग्रो कैसे करोगे? जब छोटे बच्चे थे, गिरते थे ना जमीन पे, साइकिल से गिरते थे, जमीन पे गिरते थे. अगर गिरते नहीं तो फिर खड़े कैसे होते? गिरना भी जरूरी है खड़े होने के लिए. पेन भी जरूरी है जीवन के लिए. लेट इट बी अ पार्ट ऑफ यू. एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट, एम्ब्रेस द पेन, लेट इट कम. देख लेंगे क्या दिक्कत है. लेकिन क्या है, उससे डरते रहोगे ना, तो कुछ करने से पहले ही हाथ धो बैठोगे. कुछ ट्राई नहीं कर पाओगे जीवन के अंदर. थोड़ी बहुत पेन आ रही है, आने तो क्या दिक्कत है. कम से कम कुछ ट्राई तो करोगे, कुछ एक्सपीरियंस तो होगा, एक कदम आगे तो बढ़ोगे. वरना सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे, कुछ करोगे नहीं.
डरते रहोगे। Let it be a part of you. सुबह सुबह उठना एम्ब्रेसिंग द डिस्कम्फर्ट है। सिर्फ इतना भी कर लोगे ना तो भी जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ सुबह सुबह उठना और अपने आप से कुछ सवाल पूछना या अपने लिए कुछ करना जीवन में कि मुझे क्या करना है। कहीं पे भी हो, आप इस इंस्टीट्यूट में हैं, इसके बाद कहीं काम करेंगे, जीवन तो आपका अकेले का ही है। यहां पे आने से पहले भी आप अकेले ही थे। यहां से जाने के बाद कुछ दोस्त होंगे, कुछ लोगों से गहरी दोस्ती यारी हो जाएगी, कुछ मेंटर्स होंगे, लेकिन जीवन तो आपको अपना ही बिताना है। आपके जीवन में कोई भागीदार नहीं होगा। पीपल विल नर्चर यू, पीपल विल सपोर्ट यू, करना लेकिन आपको ही है। उठना आपको ही पड़ेगा, कर्म आपको ही करने पड़ेंगे, परसिस्टेंस आपको ही दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आपकी होगी, तपस्या, त्याग, इंटेंट आपकी होगी, तो आपके लिए यूनिवर्स पलटेगा, बाकी सबके लिए नहीं पलटेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो आप करोगे, जैसा आप बीज बोगे, व्हाट यू सो इज व्हाट यू विल रीप। दिस इज हाउ इट वर्क्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्स इज कॉज एंड इफेक्ट। जैसा आप बीज बोगे, एग्जैक्टली द सेम थिंग यू विल रीप। You decide. Am I going in the right direction of life, or am I just being misguided at this point of time by looking somewhere else? What do I want? फिर क्या होता है ना, मुझे लगता है ऐसा होता है, अगर इस उम्र में हमें समझ में आ जाती है और हम थोड़ा सा फोकस हो जाते हैं, थोड़ा सा लेजर शार्प फोकस जीवन में आ जाता है, क्योंकि अगर वो लेजर शार्प फोकस अभी आ गया, मतलब मुझे तो क्रिकेट कब शुरू किया था, आई थिंक 3rd क्लास या 4th क्लास में शुरू किया था मैंने। तब से मैं जीवन में कुछ करना चाहता था। सोचो कुछ ऐसा करना है अपने लिए, और उसके बाद 10-12 साल क्रिकेट को डिवोट किए, फिर उसके बाद से एक्टिंग शुरू की, कितने साल हो गए। तो इसका उम्र से भी कोई लेना देना नहीं है, इसका समझ से लेना देना कि जीवन में क्या करना है, और जो करना है उसके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, और अगर नहीं कर पा रहा हूं तो करना है, और फिर कल से नहीं करना है, फिर आज से ही करना है। अगर जीवन परिवर्तित होता है तो एक लम्हे में हो जाता है, अगर नहीं होता तो नहीं होता। ये सिर्फ यहां से है। सिर्फ अगर आज जाग गए, नींद खुल गई, तो आगे बढ़ जाओगे। सोते रह गए तो जीवन भी आपका है, उसकी सारी कठिनाइयां, परेशानियां भी आपकी हैं। आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी को ले नहीं सकता। हर कोई भी इंसान हो, आके समझा देगा, बात कर लेगा, अपने एक्सपीरियंस से कर देगा। एट द एंड ऑफ द डे इंप्लीमेंटेशन आपका है। मैं अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए सब चीजें कर सकता हूं, आप अपने जीवन के लिए करेंगे। इतना ही सिंपल है। ओके ओके, किसी को कोई सवाल पूछने तो पूछ सकता है। यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग? हाँ, पूछिए। First of all, welcome to the IIBM, sir. Thank you. Good afternoon, sir. And my name is Harish. So my question. थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। So my question is based on fear. For example, I'm going to take a scenario. Suppose you have a friend or something like that, and they are sharing their problem with you, and you are able to make them understand that this is the solution, and they accept that solution. But somehow they are not able to, implement that solution in their life, and we see it on the daily basis. So how can we pull that person out of that, the comfort zone? So they know what they're doing, they know what they want to do, but how we can help them in that particular situation? इंटेंट सही है मदद करने की, लेकिन क्या होता ना, आपने कभी एग्जाम्पल सुना होगा कि एक अंधा है जो रोड के पास है, एक आदमी आता है, उसे लगता है ये अंधा है, इसको रोड क्रॉस करवा देते हैं, तो वो रोड क्रॉस करवा देता है उसको, और वो अंधे के पास छड़ी होते है, वो उसको मारता है कि भाई मुझे रोड क्यों क्रॉस करवाई, मैं तो करना ही नहीं चाहता था। तो आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत बार ऐसा होता है कि हम मदद उसकी कर पाते हैं जो मदद चाहता है। सिंपल है ना? Yes, sir. अगर वो मदद नहीं चाहते तो हम नहीं कर पाएंगे। मदद चाहने का मतलब सिर्फ समझना नहीं होता, मदद चाहने का मतलब होता है समझ के इम्प्लीमेंट भी करना। अगर सामने वाला इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा, ओइंग टू हिज ओन रीजंस, ओइंग टू हिज ओन एक्सक्यूजेस, ओइंग टू हिज ओन फियर्स, हम बार बार कुछ कर नहीं पाएंगे। जब वो जागृत होगा वो तभी जागृत होगा। हम जीवन में किसी को पकड़ के खींच नहीं सकते ऊपर, आप समझे? Yes. आप एक काम कर सकते हो,
आप अपने आप को खींच के ऊपर पहुंचा सकते हो। आप समझे? हम अक्सर गलती क्या करते हैं, कोई नहीं आ जाएगी, हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम दूसरों को समझा के ऊपर खींचना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं ये आपकी जिम्मेदारी है नहीं। आप बता सकते हो, आप नर्चर कर सकते हो, आप समझा सकते हो। अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो जीवन उसका है। आप अपने लिए क्या कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को बदल लिया ना, उस दिन सब चीजें अपने आप बदल जाएंगी। इतना ही सिंपल है ना। इफ यू चेंज योर सेल्फ, इफ यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, आपको ना फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आपको देख के खुद इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि आपके एक्शंस में, आपकी बातों में, आपकी सोच में कुछ ऐसा दिख जाता है जो उन्हें बड़ा ही फैसिनेट करता है, एंड दे वांट टू बी लाइक यू। तो आपका परम धर्म, सर्वोपरम धर्म स्वयं के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। दूसरे की मदद कर सकते हो, अगर लेना चाहे तो, नहीं लेना चाहे तो छोड़ दो, वो उनका जीवन है। जब जागृत होंगे, जब थोड़ी समझ बढ़ेगी तो अपने आप करेंगे। पकड़ के नहीं ला सकते ऊपर, ठीक है? थैंक यू। एनीवन एल्स? पूछ लो कोई सवाल है तो। अच्छा बोलिए। Hello sir, my name is Yavar Hamid. So my question is about how to सर हम खुद को कैसे मतलब डाइवर्ट करेंगे डिस्ट्रैक्शन से। How to divert ourselves from distractions, because I have seen in my life बहुत सारी distractions देखी है सर। Like तो सर फोकस कैसे रहे? I have tried to be focused. तो सर वो जो डिस्ट्रैक्शंस है ना सर, वो पीछा छोड़ती नहीं है सर, चलती है पीछे। इट फॉलोज लाइक दैट डायमंड। मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर जी, तो कैसे सर वो मतलब कैसे फोकस करें सर? बचपन से मतलब देखा है बहुत। मुझे लगता है हम पक्के नहीं है अपने लिए, पहली बात कि हमें जीवन में एक्चुअली करना क्या और चाहिए क्या। कोई ऐसा समय हो सकता है आज 100 साल पहले, 200 साल पहले, 150 साल पहले, 50 साल पहले, 10 दिन पहले, 10 महीने पहले, कि जब इस ब्रह्मांड में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। सोचिए, जहां पर आए हैं वहां पर डिस्ट्रैक्शंस तो होंगी। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस क्यों होती हैं? चॉइसेस की वजह से, राइट? क्या चॉइसेस कभी बंद हो सकती हैं? सोचिए, चॉइसेस तो रहेंगी यहां पर। चॉइसेस रहेंगी तो कंफ्यूजन रहेंगी। अगर पूरे पुणे में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट हो, IIEBM, तो क्या कोई कंफ्यूजन है? लेकिन अगर 100 इंस्टीट्यूट होंगे तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो कंफ्यूजन होंगी ना, कि यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, इसका ये प्रोज है, इसका ये कॉन्स है। ऐसे ही होता ना। तो चॉइसेस तो आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेंगी, बढ़ ही रही है ना, क्योंकि चीजें बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, कन्वीनियंस बढ़ेगी, चॉइसेस बढ़ेंगी। हमें ये चॉइसेस ऐसा नहीं है वो हमारे पीछे भागती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि दिमाग स्थिर नहीं है। मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है मंकी माइंड, एक होता है मंक माइंड। मंकी माइंड क्या होता है कि वो इधर से उधर भागता रहता है, ये भी चाहिए, 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 राइट? मंक माइंड क्या होता है? जो बिल्कुल सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड होता है, राइट? जैसे अर्जुन को पांडवों की कहानी सुनी होगी ना, तो क्या वहां पे चॉइसेस नहीं थी? वहां पे भी तो किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पत्तियां दिख रही थी, लेकिन वहां पे एक इंसान ऐसा था जिसको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो चिड़िया की आंख तो आपको देखनी पड़ेगी ना। वो कैसे होती है? जब जीवन में कोई पर्पस होता है ना, जब हम अपने लिए तय कर लेते हैं कि मुझे कुछ करना है यार, वाकई में वो ना पर्पस अभी स्ट्रांग है नहीं, वो विजन कुछ है नहीं लाइफ के लिए। हमारे पास विजन नहीं है लाइफ के लिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक होती है विक्टिम मेंटालिटी, एक होती है क्रिएटर्स मेंटालिटी। विक्टिम मेंटालिटी में क्या होता है कि जो हो रहा है पास्ट मेमोरीज के बेसिस पे, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होते रहने देते हैं, और हमें पता ही नहीं कि हमें जीवन में क्या करना है और कहां जाना है। और एक होता है क्रिएटर्स मेंटालिटी, जहां पे आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो, जहां पे आप तय करते हो कि मुझे ये करना है। आपका लेजर शार्प फोकस एग्जैक्टली वहीं पर रहता है, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू योर पर्पस इन लाइफ। यू वांट टू डू इट, एंड इफ यू डोंट डू इट, यू फील बैड फॉर योरसेल्फ। इन द सेंस
कि अगर मेरे जीवन में ये तय है कि सुबह उठ के मेरा दिमाग स्थिर हो जाता है और लेजर चाप फोकस हो जाता है और मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजें कर पाता हूं, तो मैं सुबह उठता हूं। लेकिन क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, कोई दिशा नहीं है कहीं जाने के लिए, हम भटक रहे हैं, तो होता क्या है, जो भी चीज आती रहती है उसमें हम अटकते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। तो एक तो पर्पस बांध लीजिए कि वाकई में क्या करना है। अगर उसके लिए कुछ समय बांधना है तो समय बांध लीजिए, राइट। और मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया और फोन से दूर हो जाइए। क्या सर हम हैं दूर ही है सर। अच्छा, दूर ही है तो अच्छी बात है। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है क्योंकि वहां से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा वैलिडेशन का एक चक्रव्यूह चलता रहता है, सीकिंग वैलिडेशन का, और वो कहीं ना कहीं फंसा देता है। सो अगर वहां से दूर है तो अपने आप चीजें थोड़ी सी स्थिर हो सकती हैं। उसके अलावा दिमाग को स्थिर करने के लिए मेडिटेशन कैन वर्क, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करती है। एक जगह पे हमें ना एक्चुअली क्या हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे कि दिमाग को टिकाना कैसे है। हमारा दिमाग टिकता नहीं है कहीं पर। हम एक काम शुरू करते हैं, उसे अधूरा छोड़ते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर उसे अधूरा छोड़ते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं, फिर चौथे पे जाते हैं। हम अधूरा ही छोड़ रहे हैं, हम कंप्लीट नहीं करते किसी चीज को। हम किताब पढ़नी शुरू करते हैं, 4 पेज पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, वो 6 महीने तक वो 4 पेज ही पढ़े हुए हैं अभी तक। वी मस्ट नो हाउ टू कंप्लीट। रिजल्ट कब आता है? जब हम कंप्लीट करते हैं चीजों को या जब अधूरा छोड़ देते हैं। करेक्ट। तो चीजों को, जो चीज शुरू करें उसे कंप्लीट जरूर करें, कि जिस दिन ये कंप्लीट करने की आदत पड़ जाएगी ना, उस दिन लॉन्ग लास्टिंग हो जाओगे लाइफ के अंदर भी। क्योंकि फिर अगर किसी से रिलेशनशिप भी होगा तो भी उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। जीवन में कोई काम करोगे, किसी जॉब में जाओगे, कोई बिजनेस करोगे, उसको आगे तक ले जाने की कोशिश करोगे। ये नहीं यहां कुछ नहीं हुआ, जरा सी पेन हुई, जरा सी दिक्कत हुई, भाग गए। The brain works on one mechanism. It wants to avoid the pain and goes for instant pleasure. इसीलिए तो डिस्ट्रैक्शन है। It goes for instant pleasure. अब सोचो, me and my wife, we were the winners of Nach Baliye season 7, जहां हम लोग 18 घंटे डांस करते थे every day for 5 months, तब जाके हम जीते हैं। अब आप सोचो, एक तो ये था यार, इतनी पेन, कभी ये टूट रहा है, कभी ये टूट रहा है, कभी नी में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ, अब यहाँ बैंडेज लगी है, कभी वहां बैंडेज लगी है। अब ये है कि या तो वो पेन इस समय बर्दाश्त कर लें और बाद में वी गेट दी हायर रिवॉर्ड बिकॉज वी हैड अ विजन टू विन, राइट? या फिर इसको ऑपोजिट कर लेते हैं कि जहां पर ये सारी वारी जो पेन है इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, तो आगे भी छूट जाएगा। So once you know you have a vision, you actually work towards it. फिर छोटी मोटी पेन, थोड़ा बहुत इधर उधर, कोई मायने नहीं रखता, because you know the target is there. फिर कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इस समय की जो पेन हो रही है उसी में उलझ गए, उसी में अटक गए और सब चीजें छोड़ दी, तो फिर आगे का रिवॉर्ड तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। तो क्रिएट अ विजन फॉर योरसेल्फ, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, एंड दैट विजन will actually give a zest and drive inside you to persevere every day. Okay? And don't go for instant rewards. कुछ नहीं होगा उससे, जीवन खराब हो जाएगा। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes. हाँ, दे दीजिए उनको माइक। हेलो सर। सर जैसे कि लाइफ में अक्सर हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, मतलब जैसे फोकस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। व्हाट का सवाल तो है, जवाब है हमारे पास, बट हाउ का जवाब नहीं है। तो सर उस हाउ का मतलब कैसे कर सकते हैं, उसका क्या आंसर हो सकता है? हाउ डू वी फोकस इन लाइफ? मतलब लाइक सर फोकस, कंसिस्टेंसी, सो हाउ कैन वी अचीव दैट रियली? व्हाट कैन वी डू टू अचीव दैट? मुझे ऐसा लग रहा है हम ना शब्दों में उलझ गए हैं। ये शब्द हैं, अच्छे भी लगते हैं, फोकस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन।
हम शायद इनकी डेप्थ, इनकी डिटेल, इनकी ग्रेविटी को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस दिन ये महसूस हो जाता है कि नहीं, मैंने सुबह सुबह उठ के आज अपने जीवन को एक कदम दिशा दी है या कुछ किया उसके लिए, तो इसका रिवॉर्ड मेरे पास आने वाला है या आएगा, तो अपने आप सब चीज़ें साइक्लिकल होती हैं। मतलब जैसे अगेन जब हम जिम जाते हैं और वर्कआउट शुरू करते हैं और 4 दोस्त आपके 4 दिन के बाद कहते हैं कि लिसन यू लुकिंग वेरी गुड, तो इट पुशेस यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, राइट? एंड देन यू वांट टू क्रिएट अ बॉडी विच हैज नॉट बीन क्रिएटेड बिफोर। वो ऑटोमेटिकली आपको फोकस दे देता है, वो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी भी दे देता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस एप्रिसिएशन एक्सटर्नल है कि 4 लोग जब तारीफ करते हैं तो हम अपने आप करते हैं। हम सेइंग अगर ये 4 लोग तारीफ नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्या करोगे? तो छोड़ दोगे फिर सब चीजें। ऐसा भी तो होता है ना। That depends on the mindset. I'm saying, why do we also depend upon the external realities? Why can't it come from inside? Get that this exactly what am I doing is actually for myself. ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ और मेरे लिए करना जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा फिर जीवन में? क्या अपने इर्द गिर्द आप लोगों को देखते नहीं हैं? इंटरनेट पे 17 साल में, 16 साल में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम पुश नहीं कर पा रहे खुद को। और अब एक्चुअली क्या ना, ये जो बात है ना, हाउ डू वी फोकस एंड हाउ डू वी बिकम कंसिस्टेंट, इसके लिए इंस्टेंट प्लेजर को छोड़ दीजिए। जो भी चीज आपको इंस्टेंट प्लेजर दे रही है, बड़ा सिंपल सा है। जैसे मेरे सामने मिठाई पड़ी हुई है और मुझे समझ में आता है कि मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खा लेता हूं। हम कब खाना बंद करते हैं उस मिठाई को? जब डॉक्टर हमें कह देता है कि आप डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं, अगर एक निवाला भी आपने इस मिठाई का लिया तो परेशानी हो जाएगी जीवन में। वी चेंज देन। आई एम सेइंग डोंट वेट फॉर दैट टाइम। तब तक चीजें खराब हो चुकी होंगी, तब तक समय निकल चुका होगा, तब तक लाइफ खत्म हो चुकी होगी। वाई डू वी वेट टिल द एंड पॉइंट? जब पानी यहां तक आ जाएगा तब हम जीवन परिवर्तित करेंगे, तब तो खत्म हो जाएगा जीवन। तब तक तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके होंगे, आप वहीं रह चुके होंगे, आप कुछ करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। डू इट when you have time, when you can do it. Just maneuver your life, give it a direction and step forward. Okay. Yes, can I give the mic to him? Hello sir, my name is Sujesh Sharma. So हमने थोड़ा पढ़ा था कि overthinking is the biggest cause of unhappy. So my question, Overthinking is the biggest cause of unhappiness. So how to reduce overthinking? कितने लोगों को यहाँ पे overthinking होती है? सभी को होती है। क्या ही सोचते रहते हो जीवन में? कोई बताएगा क्या होता है? क्या सोचते हो या सिर्फ सोचते रह जाते हो जीवन में? सर करियर से रिलेटेड। एक सेकंड बट रुको बैठ जाओ 2 मिनट। लोग क्या सोचेंगे? क्या हम अभी भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि लोग क्या सोचेंगे? कौन से हैं ये लोग? सोचो जरा ध्यान से, थोड़ी सीरियस बात है, समझो जरा। कौन से लोगों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? रुको। हाँ, आसपास के आपके 10 लोग, बस, इससे ज्यादा नहीं। शाहरुख खान आपके बारे में क्या सोचेगा? कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। या मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर के 10 लोग बस आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो अब सोचो, क्या हम अपना जीवन उन 10 लोगों की वजह से बिल्कुल खराब करने को तैयार हैं, या हम कॉन्स्टेंटली प्रूव करना चाह रहे हैं? कुछ प्रूव करना है। कभी कभी यह भी होता है कि हम साबित करना चाहते हैं, either to our parents, either to our teachers, to our siblings, to our friends, to our best friend, that listen, I am good enough. और इस साबित करने में होगा क्या? सारी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त है, गौरव, बहुत पुराना दोस्त है, स्कूल से साथ में है। उसके पापा का एक इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर था, दिल्ली में एक जगह है घंटाघर करके, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर था उसका। और पिछले 15 या 18 सालों में जब से वो काम कर रहा है, आज उसके पास 8 स्टोर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, और ईच स्टोर इज समवेयर बिगर देन क्रोमा। क्रोमा पता ना,
इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, लेकिन पता है आज भी वो पिछले 18 साल से इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कब पापा आएंगे और कहेंगे बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। तो इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी, इतनी सारी तपस्या करने के बावजूद भी एक थॉट के अंदर अटका पड़ा बस। आई एम सेइंग यू डोंट हैव टू प्रूव टू एनीवन, you just have to express yourself, not to yourself also। कुछ है आपके अंदर, बस उसका एक्सप्रेशन तो हो। कितना ही सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, कोई और क्या सोचेगा। अब वो कह रहा है उस सोचने के चक्कर में कर कुछ पा नहीं रहे हैं, सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हैं। नाइकी ब्रांड पता है ना क्या लोगो है उसका? व्हाट इज द लोगो ऑफ नाइकी? टिक मार्क तो है, लेकिन नीचे क्या लिखा होता है? थोड़ा जोर से बोलो। जस्ट डू इट का मतलब क्या होता है? सोचो। जस्ट डू इट में जो जस्ट वर्ड है ना, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ध्यान से समझो। जस्ट वर्ड, जस्ट का मतलब है डिस्पाइट ऑफ योर फेलियर्स एंड एक्सक्यूजेस एंड फियर्स, जस्ट डू इट। ये जस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेलियर्स भी होंगे, एक्सक्यूजेस भी होंगे, फियर्स भी होंगे, एस्केपिज्म भी होगा, स्टिल डू इट। क्या सोचने से सब चीजें बदल जाती हैं लाइफ में? करने से होगा। हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हम डरते चले जा रहे हैं। क्या होगा अगर गलत हो जाएगा? तो सोचो। गलत हो जाएगा तो सिंपल है, अगर गलत हो जाएगा तो जीवन में सीख लेना, और अगर सही होगा तो आगे बढ़ी जाओगे, लेकिन कम से कम कुछ करोगे तो सही। सोचने से सिर्फ शेख चिल्ली के सपने हैं और कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? क्या मैं घर में बैठा रहता और सोचता कि मेरा IIEBM में सेशन है और अपने आप सब चीजें हो जाती, या मुझे फिजिकली यहां पे आना पड़ेगा, आपसे मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो क्या ये मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस में ऐड नहीं हो जाता? हम सोचते इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम एक्चुअली ना कर्म के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, हम एंड रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, वहीं तो अटके पड़े हैं सारे के सारे। मैं आपको कह रहा हूं, कर्म के लिए कर्म करो, करो तो सही, कुछ एक कदम आगे तो बढ़ाओ जीवन में, रास्ते अपने आप खुलेंगे। शायद ये भी आपने सुना होगा या समझा होगा, जब हम पहाड़ों में जाते हैं ना धुंध के टाइम पे, ऐसे ब्रिज होते हैं ना, तो बहुत धुंध होती है, फॉग, यहां से वहां तक दिखता नहीं है कि ब्रिज क्रॉस हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ी सी धुंध हट जाती है, फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं फिर धुंध हट जाती है, फिर एक आगे बढ़ाते हैं धुंध हट जाती है, फिर क्या होता है? अपने आप सब दिखना शुरू हो जाता है। तो जब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या साफ साफ कुछ दिखेगा? होता क्या है, हम पीछे हैं और हमें लग रहा है कुछ दिख तो रहा नहीं है, धुंध है इतनी, तो नहीं चलते, यहीं बैठ जाते हैं। आई एम सेइंग कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो लोग क्या सोचेंगे, इसके चक्रव्यूह में अगर जीवन में फंस गए तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैं सोचता रह जाता कि 12th स्टैंडर्ड के बाद, जब मेरे 83-84% थे, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं BCom ऑनर्स ले सकता था, लेकिन मैंने हिंदू कॉलेज में जाके BA पास ले लिया, विच वॉज अ 3rd ग्रेड सब्जेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे को BCom ऑनर्स मिल रहा था खालसा कॉलेज में, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना था और हिंदू की टीम बेस्ट टीम थी। जब मैं हिंदू कॉलेज के एडमिशन फॉर्म के लिए गया, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, कहा कि पापा को बुला के लो कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, करेक्ट? लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मैटर नहीं करता कोई क्या सोचेगा। आई एम ग्लैड माई डैड वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, ही ऑल्सो अंडरस्टूड। लेकिन उससे भी ज्यादा क्या होता है ना, दृढ़ निश्चय, दृढ़ शक्ति अपने अंदर होती है पहले। अगर वो नहीं किया होता तो शायद जीवन कुछ और होता। तो अगर मैं ये सोचता रहता कि मेरे साथ के कंटेम्पररीज मेरे बारे में क्या सोचेंगे,
तो शायद मैं अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता, फिर मैं ना क्रिकेटर बन पाता ना एक्टर बन पाता। क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक्टिंग के लिए गया था कह रहे थे अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। आज से 18-19 साल पहले कहते थे डैड का बिजनेस है, सब चीजें कर सकते हो, व्हाई यू स्पॉइलिंग योर लाइफ। लेकिन आई डिसाइडेड कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे ये मायने नहीं रखता। मायने रखता कि मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा आज से 10 साल के बाद, कि जीवन था, अपॉर्चुनिटीज थी, मौके भी थे, ईश्वर रास्ता भी दिखा रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत ही नहीं जुटाई कुछ करने की। मैं बस यही सोचता रह गया कि लोग क्या सोचेंगे, और फिर मैंने अपने आप को खत्म और खर्च कर दिया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, अंदर बहुत सारी कॉलिंग होती है, लेकिन बस इसी चक्कर में तो फंस जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अभी कुछ दिनों पहले नहीं, काफी समय से आई बीन थिंकिंग ऑफ सिंगिंग। सोच रहा था करूं कि ना करूं। फिर मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, मन कर रहा है तो कर लेते हैं, किसी को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं तो फंस जाते हैं। सारा खेल वैलिडेशन का, हमें दूसरों से अप्रूवल चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कि सामने वाला बताएगा कि मैं कितना अच्छा हूं तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं कितना अच्छा हूं। कौन है ये सामने वाला? वो जिसको खुद अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, जो खुद भटका हुआ है, उसे खुद नहीं पता वो जीवन में क्या कर रहा है। आप उसके चक्कर में खुद को भटका रहे हैं। जो कदम ले सकते हैं वो ले नहीं रहे हैं और अटक रहे हैं। तो फिर ओवरथिंकिंग होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ओवरथिंकिंग किस चीज से रिलेटेड है? वैलिडेशन से और रिजल्ट से। एंग्शियसनेस क्यों है? एंग्शियसनेस और स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि वैलिडेशन मांग रहे हो ना। सोशल मीडिया यहां पे तो नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी है, द मोमेंट देयर ऑन सोशल मीडिया कॉन्स्टेंटली एंग्शियसनेस होती है, कितने व्यूज, कितने लाइक्स, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस, नॉट टू आस्क वैलिडेशन। वरना तो भी चक्र में फंस जाओगे। आज 100 लाइक्स हैं, कल 200 हैं, कल 50 हैं, फिर 10 हैं, तो हाथ फैला के मांगते रहोगे अप्रिसिएशन। लाइक्स एंड व्यूज क्या है? अप्रिसिएशन ही है ना, वर्चुअल अप्रिसिएशन। तो फिर हाथ फैला के मांगते रहेंगे, या फिर वो करेंगे जो पूरी दुनिया कर रही है, जिसे हम ट्रेंडिंग कहते हैं, कि अगर एक ने अपने ऊपर पानी की बाल्टी डाल ली है तो पूरी दुनिया पानी की बाल्टी अपने ऊपर डाल रही है, बिना सोचे बिना समझे कि ये क्या है, बिना अपना कुछ दिमाग लगाए, जिसे हम ट्रेंडिंग कहते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा करके हम मंकीज बन रहे हैं, क्लोन्स? किसी एक ने किया, उसने क्रिएट किया, बाकी सब क्लोनिंग। क्लोनिंग ही तो है, बिना सोचे बिना समझे, बस कोई कर रहा है, ये ट्रेंड में चल रहा है तो हम भी करते चले जाते हैं। कोई उल्टा सीधा नाच रहा है तो हम भी उल्टा सीधा नाच रहे हैं। हो सकता है मुझसे बेहतर नाच सकते हो, लेकिन हम क्रिएटर बनते नहीं, हम फॉलोअर बन जाते हैं, हम क्लोन्स बन जाते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें वो वैलिडेशन चाहिए जो ट्रेंडिंग से मिल जाएगी। अपना बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जो अपना क्रिएट हो जाता है फिर पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो आप डिसाइड करो किस रास्ते पर जाना है। बातें तो बहुत सारी हैं, समझ में आनी चाहिए और आत्मा में बैठ जानी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं होगा ना मेरे यहां पर आने का, ना आपसे बात करने का। क्योंकि अगर वो आत्मा में बैठी नहीं ना, तो जीवन परिवर्तित नहीं होगा। फिर कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर वापस वहीं चले जाओगे, फिर कुछ हो नहीं पाएगा। जिस दिन, पहले भी कह चुका हूं, जिस दिन या जिस लम्हे जागृत हो जाए, वहां से जीवन परिवर्तित होने की दिशा में हो जाना चाहिए। अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, ना मेरे लिए, ना इंस्टीट्यूट के लिए, ना डॉक्टर जय के लिए, अपने लिए। क्योंकि आप अपने लिए कुछ कर लोगे वही बहुत है बस। आई थिंक एवरीवन हियर इज आल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग, कि आप अपने लिए कुछ कर पाओ। करेक्ट? हर कोई यही कोशिश कर रहा है ना।
कि आप अपने लिए कुछ कर पाओ। हम भी बस यही चाहते हैं कि आप अपने लिए कुछ कर पाओ। बहुत बारी जब हम छोटे थे तो शायद कोई था नहीं दिशा दिखाने वाला, कोई था नहीं समझाने वाला, तो हम ऐसे दरवाजे खटखटाते रहते थे कि कहीं से थोड़ा सा ज्ञान अर्जित हो जाए, कहीं से कोई टीचर मिल जाए, कहीं से कोई मेंटोर मिल जाए, कहीं से कोई इंसान आ जाए, थोड़ी सी बात किसी के समझ में आ जाए। आते भी हैं लोग, लेकिन उस समय फ्रीक्वेंसीज बहुत कम थी क्योंकि समय कुछ और था। आज तो सब जगह सब चीजें हैं, बस ग्रहण करने के लिए कान खुले होने चाहिए और यहां पर एक ओपन हार्ट होना चाहिए to let it embrace inside your soul so that once it goes deep then it finds a direction. That's important. हो जाएगी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व? लिख लेना, नाइकी says just do it. पहले करते हैं फिर देखेंगे आगे के आगे। अभी परसों आई मेड अ वीडियो जहां पे आई थिंक मेरे घर में कोई मेरे भाई ने ऐसे प्लाकार्ड लगा रखा था, उस प्लाकार्ड पे लिखा हुआ था सोच मत बस कर दे। I think he was telling himself कि सोचने से कुछ नहीं होने वाला। Just take actions, do something. एक्सपीरियंस के लिए करो, आगे तो बढ़ो, डरों से बाहर निकलो। श्रीमद् भागवत गीता में बड़ी कमाल की बात लिखी है। कहते हैं कि जब मुश्किल समय आता है ना, जब कठिन समय आएगा जीवन में, तो अपने अंदर से एक शक्ति खुद ब खुद उत्पन्न होती है जो उस परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए, उसे पार करने के लिए रेडी होती है। इन द सेंस, when the time is right, only when the time is right, you will be granted something through the universe to handle that problem as well. You will be granted not 1 second before, not 1 second after, exactly at that moment when you're ready. जिसे हम पुरानी रामायण देखियो तो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र मिल जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही होता है, बट इट हैपन्स ओनली एट दैट मोमेंट। हमें क्या चाहिए? हमें पहले से चाहिए ब्रह्मास्त्र, क्योंकि हम डरपोक बहुत हैं। प्रॉब्लम आने से पहले उसका सॉल्यूशन चाहिए, आने तो दो पहले, सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर प्रॉब्लम के अंदर उसका सॉल्यूशन होता है। इट्स लाइक द की एंड द लॉक। कभी कोई लॉक बनता है बिना चाबी के? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन उसके अंदर छुपा होता है। क्या आप उस सॉल्यूशन को ढूंढ पा रहे हो या नहीं? अक्सर लोग प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। गाड़ी पंचर हो जाती है तो गाड़ी पर लात मारते रहते हैं, टायर पर लात मारते रहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कोई नहीं सोचता कि स्टेपनी है कि नहीं है, क्या कर सकता हूँ, स्टेपनी चेंज कर सकता हूँ, नहीं चेंज करने आते तो यूट्यूब से सीख लूंगा, या लिफ्ट ले सकता हूँ, गाड़ी छोड़ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। दिमाग कहाँ जाता है? प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी, प्रॉब्लम तो हो गई है, अब बताओ क्या करना है। इसे कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। दिस इज द प्रॉब्लम, नाउ टेल मी व्हाट कैन आई डू, नॉट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाई इट हैज हैपेंड। हमारा सारा ध्यान कहाँ जाता है? ये मेरे साथ क्यों हो गया है, वाई मी, है ये सवाल। जैसे ईश्वर को आपसे तो बड़ी दुश्मनी है, सारी प्रॉब्लम आपको ही दे रहा है, उससे कोई काम ही नहीं है, बस सब कुछ भी नहीं है, सबके साथ है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बट उनका पहला जहन, पहला रिएक्शन सिर्फ इस बात पे जाता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सोचते हैं यार ये तो आ गया है, अब इसमें अटकना है, फंसना है, बिखरना है या निखरना है। बिकॉज एवरी प्रॉब्लम इज बेसिकली नथिंग बट अ डीकोड टू अ लेसन इन लाइफ। एक लेसन है जो कुछ सिखाना चाहता है ईश्वर। गॉड वॉन्ट्स टू टीच यू समथिंग थ्रू दैट प्रॉब्लम। आर यू लर्निंग दैट लेसन और नॉट? If you learn the lesson, then you move one step ahead. If you don't learn the lesson, then the same problem will come in some other form, in some other circumstances. मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि वही पुरानी प्रॉब्लम एक नई चादर ओढ़ के आपके सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने वो लेसन सीखा नहीं पिछली बार। तो गोल गोल घूमना है तो घूमते रहोगे गोल गोल, अगर सीखोगे नहीं जीवन से तो। लाइफ इज टीचिंग यू एवरी मोमेंट। लर्न द लेसन। और लर्निंग का मतलब सिर्फ समझ नहीं होता, लर्निंग का मतलब होता है लर्न इट एंड इंप्लीमेंट इट व्हेन द राइट टाइम कम्स।
कि अगर गुस्सा है, मैंने अपने आप को कहा कि अगली बार गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अगली बार फिर इमोशनल रिएक्शन आया, फिर गुस्सा हो गया तो फंस गए। फिर तो अगली बार गुस्सा आया और आपने गुस्सा नहीं किया तो आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, आपके अंदर कुछ बदल गया, वहां से आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। यू डिसाइड। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा बोलो, चलो। So I have a request. बोलो। So can you please quote your famous lines from Nachvaliya, because I really like those lines, so I want to hear it from you. अच्छा, वो लाइंस वो तो वीडियो में भी थी एक्चुअली। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। वो भी ऐसा कुछ, आई थिंक कुछ लम्हों पे ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा था ना, वो ईश्वर ऐसे हाथ रख देते और कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिससे जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो वो लाइंस कुछ ऐसी थी कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। यहाँ चंद लम्हों में जिंदगियां गुजर जाती हैं तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना ही सिंपल था। Thank you so much, sir. Thank you. Anyone else has any question? अच्छा, okay, we'll take the last question. सर, आई एम सुयश। सर, एक क्वेश्चन है कि जब एक मोमेंट आता है लाइफ का कि हमें अपने सपनों को या जो रियलिटी है उसमें से चूज करना पड़ता है, कि अगर रियलिटी चूज करेंगे तो सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर सपनों को फॉलो करते हैं तो रियलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये मुझे लगता है थोड़ी सी ना गलत फहमी सी हो गई है ये सपनों और रियलिटी वाली बात। वो इसलिए क्योंकि दोनों का बैलेंस बनता है जब तक, मैं बताता हूँ, चलो सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अमीश त्रिपाठी जी का सुना है किसी ने? अमीश त्रिपाठी जो ऑथर है, फ्रॉम किताबें हैं द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, शिव जी के ऊपर किताबें हैं, और अभी राम और सीता और इन सब के ऊपर किताबें बनाई हैं। तो अमीश त्रिपाठी जी का, अब बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। मैंने एक इंटरव्यू सुना, बड़ी खूबसूरत बात है उनकी। तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में काम करते थे, ठीक है, लिखने का बड़ा शौक था और लिखना ही चाहते थे, लेकिन घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है अब लिखने से पैसे तो मिलते नहीं जब तक किताब ब्लॉकबस्टर हिट ना हो जाए, रॉयल्टीज आनी ना शुरू हो जाए। तो वो लिखना चाहते थे, लेकिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम में बिजी रहते थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में सुबह से लेकर रात तक काम करना। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा सपना है कि मैं लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत काम किया जो हर कोई कर सकता है। तो उनका जो ऑफिस था जहां वो रहते थे, वहां से 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की दूरी पर था। वो रोज गाड़ी में जाते थे और गाड़ी में आते थे। उन्होंने एक ड्राइवर रख लिया, ड्राइवर अफोर्ड कर सकते थे, ड्राइवर रख लिया। अब ड्राइवर गाड़ी चलाता था और उनके पास 1.25 घंटा आने का, 1.25 घंटा जाने का था। उन्होंने 1.25 घंटा आना और 1.25 घंटे जाने को यूटिलाइज किया राइटिंग में, और ऐसा उन्होंने 4.5 साल तक किया। और उन 4.5 सालों में जो 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना जो था, उसमें किताब लिखी गई जिस किताब का नाम था इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पार्ट 1। ठीक है, किताब लिख दी 4.5 साल में, अपना काम करते रहे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहे, किताब लिखते लिखते किताब छप भी गई और किताब ब्लॉकबस्टर भी हो गई। उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी अभी भी। उनको लगा शायद हो सकता है तुक्का लग गया हो, पता नहीं अगर मैं नौकरी छोड़ दूं और उसके बाद पता लगे दूसरी किताब ना चले तो मुश्किल हो जाएगी। तो बात हुई सपने और रियलिटी के बीच में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी किताब लिखी, उसका पार्ट 2, उसमें भी 2-3 साल लग गए। वो भी ऐसी ही ड्राइविंग आना जाना करते करते दूसरी लिख दी, तो दूसरी भी ब्लॉकबस्टर हो गई। फिर उन्होंने तय किया कि जब तक इन दोनों किताबों की रॉयल्टी जितनी मेरी तनख्वाह है पर मंथ उससे ज्यादा नहीं हो जाएगी ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, तब तक मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो जिस दिन उसकी रॉयल्टी ज्यादा हो गई, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, सपने की तरफ अग्रसर हो गए, रियलिटी बदल गई। पॉसिबल है ना, हर इंसान के साथ पॉसिबल है, लेकिन हम गलत फहमी पाल लेते हैं कि नहीं या तो ये है ये है। दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं। काम करना भी पॉसिबल होता है। जिसको गिटार पसंद है वो रात को क्या 10 बजे के बाद गिटार नहीं बजा सकता? उसे किसी ने मना किया है? थोड़ा सोना कम पड़ेगा और क्या होगा, करो 2 घंटे रियाज, पढ़ाई भी करो, साथ में ये भी करो। जब मैं MBA करता था तो मैं MBA भी करता था। MBA खत्म होती थी दोपहर को 2 बजे, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक MBA की क्लासेस होती थी। 2:30 बजे लंच करने के बाद मैं जाता था साउथ दिल्ली साकेत, वहां पे मेरी पैरी जॉन्स की एक्टिंग वर्कशॉप होती थी 4 बजे।
4 से 6 वो होती थी, 6 से 6:30 7 बजे तक रेस्ट होता था, 7 बजे शामक डावर की डांस क्लासेस होती थी, 8:30 बजे वो खत्म होती थी, 9 साढ़े 9 के आसपास मार्शल आर्ट शुरू होती थी जो 11 बजे तक चलती थी, 12 बजे मैं घर पहुंचता था और ये रोज 1 साल तक किया गया और मेरे घर वालों को पता भी नहीं था ये सब चीजें चल रही हैं, उनको लगता था क्या क्या हो रहा है। आप समझे, करने के लिए सब चीजें हैं। और वो जो मैंने 1 साल किया ना, वो जो तपस्या आपने सर नीचे रख के की, जिसका कोई रिजल्ट मिलना था या नहीं मिलना था पता नहीं, 1 साल के बाद एक कॉन्टेस्ट हो गया अपने आप, इजी सिने स्टार्स की खोज, एन ऑल इंडिया टैलेंट हंट, और अगर मैंने वो तैयारी नहीं की होती तो मैं टॉप 3 तक नहीं पहुंचता। तो तैयारी पहले होती है, सर नीचे रख के, रिजल्ट बाद में आता है। वो जब अपने आप ही रास्ते भी खुलते हैं, अपने आप डायरेक्शन भी खुलती है, अपने आप चीजें बन भी जाती हैं। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, दैट्स इट। आपको रास्ते खोजने पड़ते हैं, छोड़ने नहीं, खोजने पड़ते हैं, उसमें से रास्ता निकालना पड़ता है। दैट्स हाउ वी डू इट। करो ओके कर लेना अपने जीवन में कुछ, बस इतनी उम्मीद करता हूं। इससे ज्यादा तो नहीं, अपना भला कर लेना तो अच्छा है। लाइफ इज गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much, sir. I would like to end the session by sharing few lines. इंसान हमेशा अपनी हाथों की लकीरों को दोष देता है। इंसान हमेशा अपने हाथों की लकीरों को दोष देता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। यूनिवर्स पे ब्लेम डालता है जैसे सर ने बताया। लेकिन दोस्तों, काम तो वो भी करता है जिनके पाँव नहीं होते, और खुश तो वो भी रहता है जिनके हाथ नहीं होते। And yes, if you want something, then the whole universe conspires in the favor of you. Thank you so much, sir, for an eye-opening session. Thank you so much, Rishiraj sir, for being here with us. Thank you everyone for being such a wonderful audience.